So it's a game of hide and seek between Shri Krishna and his saint. They're always together, but to increase the excitement and to actually increase the experience of blissfulness, sometimes Shri Krishna hides from the saint, and the saint feels like, where did he go? Where did he go? I have to find him. He's so beautiful. I want to see him again. So he's longing for Shri Krishna. Imagine the saint experiences unlimited divine happiness in seeing Shri Krishna. It's unlimited. So if Shri Krishna disappears, what is he going to feel? The saint will feel unlimited amount of separation. Just like however much you love someone in this world, the exact amount of love you feel for them will be reflected, if you're ever separated from that person, in an equal amount of feeling of separation or longing to meet them. The two will match exactly. If you don't long to meet that person when you're separated from them, it means there's no love. The longing has to be there if you're separated. How much does the saint love Shri Krishna? Unlimited. So how much feeling of separation is there? The feeling of viraha is also unlimited. But this viraha is not like the viraha we experience in worldly love. In worldly love, it's not a good feeling when you're separated from your beloved. You only want the feeling of milan. You don't like to be separated from them. And the longing you feel to be reunited with them does not give you happiness. In the divine realm, it's something different. In the divine realm, the devotee actually enjoys the feeling of viraha. Chaitanya Mahaprabhu ji says, Sangam viraha vikalpe varamiha vayamiha viraho na sangamastasmat. He says, between these two feelings, the feeling of viraha and the feeling of sangam, the feeling of meeting with Shri Krishna. Sangam viraha vikalpe varamiha viraho na sangamastasmat sange sa iha tathaikas tribhuvanam apitanmayam virahe. He says, between the two, the experience of viraha is even greater for a saint than the experience of milan. And he tries to explain, even though without experiencing it ourselves, how can we actually understand? We can't. But he puts it into words. He says, in milan, the saint is seeing Krishna in front of him. He's meeting with him. But Shri Krishna is only at one place. And he's met with him. He can hug him. He can talk with him. He's with Shri Krishna. That's milan. In separation, what happens? In separation, the longing for Shri Krishna grows to such a point that the saint no longer can differentiate between himself and Shri Krishna, and every particle of the whole world becomes Shri Krishna for him. So that is actually a higher experience of Shri Krishna's love, that experience of viraha. It's something saints understand, and they tell us about it so that we can at least appreciate a little bit that there are great things in the divine world, that the experience of the divine bliss is not boring. Our mind is such that we actually doubt, will I be bored after God realization?
It's preposterous, it's ridiculous to have such a doubt, but we all have that doubt. We think, oh, being happy all the time must be boring. What actually happens in the divine world? Must be kind of boring. Do I even want to go over there? Maybe I want to just stay here. Like when Prahlad Ji was leaving the earth, he saw a pig and he said, you know, I'm leaving now. I'm going to God's divine abode where there's only bliss, nothing but bliss. And if you want, I can take you along. So the pig asked, will I get my muck over there? Pigs eat muck, you know, decomposing, smelly organic matter. That's what they like to roll in and eat. And so it's, you know, very unappealing to us, but that's what the pig loves. So Prahlad said, no, I don't think there's any such smelly, stinking muck over there in the divine world. And the pig said, well, I think I'll just stay here then. We're kind of like that. We only know the ups and downs of this world, the mixture of pleasure and pain that we go through on a daily basis, and we can't imagine the greatness of pure bliss, pure unlimited bliss. So we figure I'll just stick with what I know. So saints, you know, you could wonder, why would Maharaji tell such a secret to us about Viraha and Milan? It has nothing to do with our current experience, and we can go on doing devotion without knowing this thing because it's completely beyond our level of experience until we get God realized. But sometimes saints reveal a little glimpse of what the divine world is like so that souls have more of a desire, they're more inspired to get to that point, and we realize, no, it really is something amazing and ever new. And once we get a chance to experience it, we'll never doubt again that the bliss of the divine world is something unlimited times greater than any pleasure of this world. So I'll briefly recap this in Hindi. इस दोहे में श्री कृपालु जी महाराज समझाते हैं कि महापुरुष के लिए जब श्री कृष्ण से वियोग होता है और उस वियोग में जो विरह का अनुभव होता है अपने हृदय में, उसमें भी रस है। और जब श्री कृष्ण से मिलते हैं वो महापुरुष, उसमें भी रस है। भगवत प्राप्ति के बाद वैसे वियोग नहीं हो सकता है, भगवान से वियोग कभी नहीं हो सकता है भगवत प्राप्ति के बाद। लेकिन उस मिलन में, श्री कृष्ण से मिलने के बाद कभी वियोग नहीं हो सकता है, लेकिन उनसे मिलने के बाद कभी कभी श्री कृष्ण वियोग का अनुभव कराते हैं। या जैसे मैं कह रहा था, वो लुक्का छुपी खेलते हैं। क्यों? ताकि वो जो आनंद है वो बढ़ता जाए। कभी कभी मिलन का आनंद, मिलन का रस पीने में मज़ा आता है महापुरुष को, कभी कभी वियोग का रस पीने में मज़ा आता है महापुरुष को। लेकिन कृपालु जी महाराज कहते हैं कि उन दोनों में से वियोग का रस बड़ा है, वो आनंद बड़ा है जब श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो जाते हैं, जब गायब हो जाते हैं। और महापुरुष जो पहले वो अनुभव कर रहा था कि ओह हाँ, श्री कृष्ण मेरे पास आ गए हैं, वो मिलन का रस मिल रहा है उसको और वो अनंत मात्रा का है, उनसे बात हो रही है, उनका सौंदर्य देख रहे हैं, अनलिमिटेड आनंद मिल रहा है।
और अब गायब हो गए, अंतर ध्यान हो गए। तो क्या हुआ? हाँ, कहाँ गए मेरे श्री कृष्ण, मेरे प्रियतम कहाँ गए? अभी अभी थे, अब कहाँ गए? उसमें भी अनंत मात्रा का आनंद है। कैसे? अब श्री कृष्ण को ढूंढने में वो विरह इतना बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है कि अब वो महापुरुष वो नहीं समझ सकता है कि मेरा जो मैं हूँ वो कहाँ ख़त्म होता है और श्री कृष्ण कहाँ शुरू होते हैं। वो एकदम एक हो जाते हैं उस विरह में। और जब देखते हैं पूरा संसार कण कण श्री कृष्ण बन गया है, तो श्री कृष्ण हर कण में देखते हैं। और मिलन में श्री कृष्ण एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर देखते हैं। इसलिए मैंने वो श्लोक कोट किया है चैतन्य महाप्रभु जी का, जिसमें वे कहते हैं कि ये विरह वाला आनंद, ये वियोग वाला आनंद बड़ा है, संत को ज़्यादा आनंद मिलता है उसमें। और वो बदलता रहता है। श्री कृष्ण कभी वियोग देते हैं, कभी मिलन देते हैं, और मिलन में वियोग का डर रहता है और वियोग में मिलन की आशा रहती है। तो दोनों में दोनों रहते हैं, मिलन में वियोग रहता है और वियोग में मिलन रहता है। तो ऐसा खेल है प्रेम के जगत में। श्री कृष्ण की लीला क्षेत्र में ये खेल रहता है, विरह और मिलन का खेल। और इसके कारण ये आनंद अनंत काल तक वर्धमानम रहता है। वो बस बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। कभी नहीं ओल्ड होता है, वो बोर कभी नहीं होते हैं महापुरुष। तो ये रहस्य जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज हमको समझाते हैं इस दोहे में। और अगले वाले दोहे में एक और बात समझाते हैं विरह के बारे में, लेकिन ये वाला विरह साधक का विरह है। अभी पिछले वाले दोहे में जो विरह था, ये महापुरुष की स्थिति है, ये हमारी स्थिति नहीं है। हम श्री कृष्ण से एक बार भी हमने उनसे नहीं मिले, तो हमने कभी मिलन का अनुभव नहीं किया है श्री कृष्ण का, और कभी असली वियोग का अनुभव भी नहीं किया है, क्योंकि असली वियोग का अनुभव मिलन होने के बाद होगा। तो महापुरुष दोनों जानते हैं मिलन और वियोग। हमने अभी तक न मिलन का अनुभव किया है और न असली वियोग का अनुभव किया है। लेकिन रूप ध्यान में हम दोनों का मेडिटेशन करते हैं। हम ये ध्यान बनाते हैं कि अभी मैं बैठा हूँ और श्री कृष्ण के लिए वेट कर रहा हूँ, उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, अभी आएंगे, अभी आएंगे, अभी आएंगे। और ये व्याकुलता बढ़ाने की चेष्टा करते हैं कि कब आएंगे। ये हम ऐसा ध्यान करते हैं। और कभी कभी ये ध्यान करते हैं कि हाँ, अब आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ गए, उनका आलिंगन कर सकते हैं। ये सब हम रूप ध्यान में कर सकते हैं। और ऐसे करने से इसको साधना बोलते हैं। ऐसे करने से असली महापुरुष की कृपा से विरह का अनुभव पैदा होगा, असली विरह पैदा होगा हमारे हृदय में। वो तो मैंने कल समझाया था। तो
अब इस दोहे में कृपालु जी महाराज बताते हैं कि ऐसे विरह से हमारे हृदय में क्या होता है। तो कहते हैं कि मायाधीन मलिन मन है अनादिकालीन, हरि विरहानल धोय जल, करु निर्मल बनी दीन। पहले मैंने विरह को आग के समान बताया आपको, विरहागिनी या विरहाग हम कहते हैं, क्योंकि विरह का ताप होता है। लेकिन यहाँ कृपालु जी महाराज दूसरी तरह से समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि विरहानल, विरहानल धोय जल। तो ये विरहा अनल, ये अनल का ये दूसरा, उसका दूसरा नाम है अग्नि। लेकिन उसका जल वो क्या है? अग्नि का जल, हाँ ये जल, जब ये विरहा जलता है तब आँखों से आंसू बहते हैं। तो उस विरह वाले, विरहाग वाले आंसू से हमारा हृदय साफ होता जाता है। श्री महाराज जी कहते हैं कि ये मन अनादिकाल से मलिन है। वो मलिनता क्या है? हर एक कर्म इसमें है, हर एक विचार इसमें है। हमने जो भी सोचा है इस जीवन में और अनंत काल से अनंतानंत जन्मों में हमने क्या क्या सोचा है, वो सब इसमें भरा है हमारे मन में। तो ये सब सत्वरजतम वाली चीज़ें हैं जो हम सोचते हैं। थोड़ा बहुत भक्ति की होगी, उससे थोड़ा बहुत अंतःकरण शुद्ध भी हुआ होगा, लेकिन फिर हम उसको डुबाते हैं संसार में, तो फिर मलिन हो जाता है। तो अनादिकाल से अनंतानंत कर्मों से हमने इस मन को बहुत अशुद्ध कर रखा है, बहुत मलिन है मन। तो उसको कैसे साफ करें? विरह के ताप से जो आंसू निकलते हैं उससे, उसी से मन शुद्ध हो सकता है, और कोई उपाय नहीं है। न योग से, न ज्ञान से, न कर्म से। ये सब अच्छे मार्ग हैं, लेकिन न सम्यक प्रपुनाति ही। भागवत में श्री कृष्ण कहते हैं कि उन दूसरों मार्गों से पूर्ण अंतःकरण की शुद्धि संभव नहीं है। केवल ये आंसू से, जो आंसू निकलते हैं जब हम श्री कृष्ण के लिए रोते हैं कि कब आएंगे आप, कब आएंगे, इसको विरह वाले आंसू कहते हैं। उन्हीं से हमारा हृदय शुद्ध हो सकता है। तो कृपालु जी महाराज कहते हैं, हरि विरहानल धोय जल, करु निर्मल बनी दीन। जब हम अपने आप को दीन मानते हैं, दीन होने का महसूस करते हैं, तभी आंसू आएंगे। जब हम अपने आप को कुछ समझते हैं कि मैं भी कुछ हूँ, तब आंसू नहीं आएंगे। अहंकार है, अहंकार के कारण हम श्री कृष्ण के लिए नहीं रो पाते। कृपालु जी महाराज हमेशा कहते हैं कि रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। भगवान के दर्शन के लिए रो।
इससे हम ये बात, इससे कृपालु जी महाराज ये बात और स्पष्ट कर रहे हैं कि भक्ति मन से करनी है। हमने भक्ति बहुत की है, लेकिन किससे? हाथ से, जबान से हमने भगवान का नाम गाया, हमने हाथ से पूजा किया, हमने मुंह से पाठ किया। तो हमने इंद्रियों से और शरीर से बहुत भक्ति की है, लेकिन हमने कितने आंसू बहाए हैं श्री कृष्ण के मिलन के लिए। हमने संसार के लिए बहुत सारे आंसू बहाए हैं। हम बेटे के लिए रोते हैं, बेटी के लिए रोते हैं, पति के लिए रोते हैं, माँ के लिए रोते हैं, बाप के लिए रोते हैं, अपने लिए भी रोते हैं। लेकिन हमने भगवान से मिलने के लिए कितना रोया? एक भी आंसू? इसलिए कृपालु जी महाराज हमेशा कहते थे कि रूप ध्यान करो, उनका नाम गाओ, गुण गाओ, और उसके साथ आंसू बहाओ, उनसे मिलने आंसू बहाओ। तो यदि आंसू नहीं निकल रहे हैं तो हम, मतलब कंक्लूजन क्या है? यदि जब ये प्रमाण है कि हम भगवान के लिए नहीं रोते, तो क्या मतलब है? उसका मतलब है कि अहंकार है। हम दीन नहीं हैं, दीन बनना है। हम समझते हैं कि भगवान की ज़रूरत है ही नहीं। मेरा बैंक अकाउंट है, मेरा बेटा है, ये है वो है, मैं बलवान हूँ, मैं समझदार हूँ। तो ये सारे चीज़ें या एक दो चीज़ें का अहंकार है हमारे हृदय में। ये एक कारण होगा या हो सकता है कि इसके कारण हम रो नहीं पाते, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि ज़रूरत भी है। या हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमने अपना संबंध श्री कृष्ण से नहीं माना है कि वे ही हमारे हैं। नहीं, हम समझते हैं कि मेरा बेटा मेरा है, ये पति मेरा है, ये दोस्त मेरा है। हमने ये नहीं समझा कि श्री कृष्ण ही मेरा है। इसलिए हम उनके लिए, उनसे मिलने के लिए व्याकुल नहीं हैं। हमारे हृदय में अभी ये आशा पैदा नहीं हुई है कि उनसे मिलूं, उनसे मिलूं। वो नहीं है अपने हृदय में, इसलिए हम रोते नहीं, आंसू नहीं निकलते हैं, क्योंकि इच्छा ही नहीं है उनसे मिलने की। तो आंसू क्यों आएंगी? तो कृपालु जी महाराज हमेशा समझाते हैं कि दीन बनो, अपने बैंक अकाउंट पे विश्वास ना करो, अपने ऊपर विश्वास ना करो, किसी का विश्वास ना करो। श्री कृष्ण ही तुम्हारे हैं, उन्हीं का विश्वास करना है। वे ही हमारे हैं, वे ही आनंद हैं। तो जब हम ये समझते हैं, तब ये आशा पैदा होगी कि उनसे मिलूँगा, एक दिन ज़रूर उनसे मिलना है। तब हम रोएंगे, तब हम दीन, अपने आप को दीन समझेंगे कि आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। तो ये फीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये नहीं हुआ, तब तक असली भक्ति नहीं हुआ। असली भक्ति हम कर ही नहीं रहे, जब तक असली विरह नहीं आया और जब तक आंसू नहीं आए। तो यदि आंसू नहीं आते हैं अभी, तो आप निराश ना हो जाइए।
अभी हम बिगिनर्स हैं, हम नॉविस हैं इस मार्ग में, अभी अभी हम शुरू कर रहे हैं। अभी तो हम इस अवस्था में हैं कि हमने श्री कृष्ण का ध्यान करने की कोशिश की है और 1 सेकंड के लिए उनका रूप बना सकते हैं और उसके बाद मन संसार में चला गया। 10 मिनट में संसार भटकता रहा, फिर याद आई, हाँ मैं श्री कृष्ण का ध्यान कर रहा था, भूल गया, अच्छा। फिर 1 सेकंड के लिए हमने उनका रूप बनाया है, फिर चला गया संसार में। अभी हम उस स्टेज में हैं ना, हम बिगिनर स्टेज में हैं। तो हमको बस अभ्यास करना है, अभ्यास करें और ये याद रखें कि आंसू होना चाहिए। अभी नहीं है क्योंकि मैं बिगिनर हूँ, अभी मैंने इतना चिंतन भी नहीं किया है कि वे ही मेरे हैं, वे ही मेरे हैं। उसका चिंतन तो करना चाहिए, तभी अटैचमेंट बनेगा हृदय में। तो डिप्रेस्ड मत हो जाइए, लेकिन याद रखिए कि एक दिन आंसू ज़रूर आना चाहिए। ये लक्ष्य है, ये प्रमाण है, ये एक पैमाना है कि असली भक्ति है कि नहीं, मैं ठीक से इस भक्ति मार्ग में चल रहा हूँ कि नहीं, क्या मुझे सचमुच असली गुरु की कृपा मिल रही है कि नहीं, ये प्रमाण है। तो एक दिन होना चाहिए। पहले थोड़ा, जैसे मैंने बताया, थोड़ा विरह के ताप का अनुभव होगा आपको, फिर उसके बाद आंसू निकलेंगे। फिर आप सोचेंगे, हाँ अब मैं असली भक्त हूँ, फिर आंसू बंद हो जाएंगे क्योंकि आपने तुरंत अहंकार किया, हाँ आंसू आ गए, अब मैं भक्त हूँ अहंकार आ गया, आंसू खत्म वो भी होगा। फिर आपको दोबारा दीन बनने की कोशिश करना पड़ेगा, फिर आंसू आएंगे। ऐसा अभ्यास करना पड़ेगा हमको। तो उन आंसुओं से हमारा हृदय निर्मल हो जाएगा, और जब पूर्ण निर्मल हो जाएगा, तब श्री कृष्ण हमारे आंसू अपने आप पोंछेंगे। श्री कृपालु जी महाराज कहते हैं कि ये मत समझना है कि जब वो आंसू, साधना में जो आंसू आएंगे ना, उनको असली आंसू मत समझो, उनको नकली आंसू समझो, तब अहंकार नहीं आएगा। आप समझो कि हाँ आंसू तो आए, लेकिन श्री कृष्ण इसको पोंछने के लिए नहीं आए, तो ये असली आंसू नहीं है, ये अभी नकली हैं। जब असली आंसू आएंगे, वो खुद आ जाएंगे पोंछने, तब समझो कि मैं भक्त हूँ, तब अहंकार नहीं आएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब मैं कुछ शब्दों में अंग्रेजी में भी समझाऊंगा। I was explaining this very important doha, that our mind is impure from unlimited lifetimes of past karma. Every single thought is stored up in our heart. So our heart, our antahkaran, is extremely dirty. And the best way to clean it is with the tears of viraha. That fire of viraha can also lead to crying tears of longing to meet Shri Krishna. Tears of longing and also tears of repentance for all the wrong things we've done and all the time we've wasted in this life, all the ingratitude that we've had towards Shri Krishna for his grace. So those tears have the power to clean our heart. Those tears are very important. They're an important sign that we have true devotion in our heart. Without
tears, we cannot say that we really are doing devotion properly. Devotion must be done with the mind. And we have to long to meet Shri Krishna. From our heart, we have to long to meet Him. And if we're truly longing to meet Him, then tears must come. Tears will definitely come. So this can be used as a measure that are we proceeding correctly on the path of bhakti, or are we just going through the physical motions of listening to pravachan, doing some kirtan, or are we actually doing devotion with our heart, with our mind? If we are doing devotion with our heart, then there has to be some longing to meet Shri Krishna. And where there is longing, eventually tears will come. So that longing has to intensify. Only then the tears will come. But one should not think that when these tears come, although it is a good sign and it's an important sign that means you've correctly understood how to practice bhakti and you are practicing bhakti with the grace of a true saint. But normally we also feel some pride when tears come, because we know this, that I'm supposed to have tears. So when tears come, then we feel, oh yes, I'm actually a good devotee. And as soon as that pride comes, that it's like someone turned off the switch and the tears are gone instantly. Because longing is associated with humbleness. So we have to become humble, and as soon as we feel that pride, the humbleness is gone and the tears are gone. So Maharaj says we have to be deen in this doha. Deen means to be humble. Cry for Shri Krishna and remain humble. So I just explained in Hindi that one way to maintain that humbleness, even when tears come, so that we don't think, oh, I'm a great devotee. Shri Maharaj explained to us several times that we should not think that those tears we cry when we're doing devotion, that those are real tears. Those are fake tears. Because real tears, Shri Krishna has to come and wipe Himself. When someone cries even a single tear to meet Him, He has to come and wipe that tear with His own hand. But it has to be a genuine tear, a true tear. So we haven't yet cried even one true tear to meet Shri Krishna. Up till now, they've been fake tears. And we should keep that in mind. No matter what tears we're crying, if He hasn't personally come and wiped those tears with His own hands, then they're not real tears. Then we won't feel the pride that I'm some kind of good devotee. And one day He will come and wipe those tears when our heart has been completely purified through these tears of viraha. When those tears have washed away all the impurities of our heart, then He will come and meet us personally. So that's the meaning of this doha, which we'll now sing. Jai Radhe Krishna Radhe 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 Krishna Radhe 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 Jai Radhe Krishna Radhe 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 Krishna Radhe
जय राधे जय राधे राधे। राधे जय राधे जय राधे। कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण। कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण। मायाधीन मलिन मन है अनादिकालीन। राधे राधे मायाधीन मलिन मन है अनादिकालीन। राधे राधे काली। हरि विरहानल धोय जल करु निर्मल बनी दीन। राधे राधे जल करु निर्मल हरि विरहानल धोय जल करु निर्मल बनी दीन। राधे राधे
जय राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे। 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 अलबेली सरकार की जय।